Hello students, welcome back. Today we are going to do our next composition part, and this part is debate writing. And debate writing is an important topic in a grammar or in our composition part. And how can we write it, we will came to know, and what we can write it, we came to know in this one. So some tips are given here regarding writing debate writing. So let's start without wasting any time. So let's start. The first thing is, what is debate? So debate is a serious discussion on an issue or a subject. So debate is a serious discussion on an issue or a subject. The second thing is, it is written in argumentative style. So it is written in argumentative style, and for debate two persons are required. These are maybe more, so more persons may be there, but minimum two persons are required. One will go against it and one will go with it. So if any topic is given there, in that given topic, one person will speak in favor of that topic, and another person will speak against the topic. So next one is, the first and the foremost step is to choose the side. So you have to choose the side first. You are going according to topic, or you are going against the topic. Which topic is given to us? So first of all, we have to choose. We have to, yes, you take the side first. So which side we are going? We are going to the positive side, or we are going to the negative side? We are with the topic, or we are against the topic? This is the first thing. And whether you want to write for, when you want to write, yes, you for the topic or against the motion, it should be the first thing. So always try to select the side you personally want to support. So first of all, you have to select the side, in which side you want to go. You want to go in favor, or you want to go against it, or have more material information to write on. So first of all, the first thing is that if you know more about the thing, then you have to participate in it. So how many topics will be given there? So it is a topic is there. So body, what will be the body of the our debate writing? So there will be three passages, paragraphs. One is initial paragraph, second one is middle paragraph, and third one is final paragraph. So initial paragraph will contain, be included. So what will be included in initial paragraph? There will be salutation or introduction, and next third one is rhetorical questions, and third one is express your heart, keeping the topic in mind. So first in initial, so what we have to do in salutation? So first thing is salutation. How can we write the salutation? It is given here, salutation plus introduction. Good morning everyone. So esteemed judges, honorable guests, respected teachers, and my fellow students. So you can speak your name, or it may be that a name given in the statement, name given in the questions, which questions you will face in your question paper. Then you have to write the given name, which is given in the question paper, which is given in the statement. So you can write here. If it is not given, then you can write your name also here. So feel honored to have been given the opportunity to speak for or against. So it is your choice. You are going against the topic, you are going for the topic. So the topic name, which topic is given there, you have to write the name of here. So this is the these are the some tips of our marking, of our debate writing. So again, I am going to speak in Hindi. I am going to tell in Hindi debate writing. So debate writing is a serious discussion on an issue or a subject. जो debate है वो एक serious discussion होता है किसी इशू, किसी मुद्दे को लेके, किसी सब्जेक्ट को लेके, और ये हमेशा इट इज रिटन इन आर्गुमेंटेटिव स्टाइल, और इसको हमेशा आर्गुमेंटेटिव स्टाइल में लिखा जाता है, बहस के तौर पे लिखा जाता है. इसमें बहस होती है दो पक्ष के बीच में, दो वहाँ पे फेवर बैठते हैं, दो वहाँ पे होते हैं, जो होता है एक फेवर में होता है और एक उसके अगेंस्ट होता है. तो हमें एक अगेंस्ट वाला और दूसरा जो फेवर वाला है, उन दोनों के बीच में बहस होती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिबेट राइटिंग. तो अब यहाँ पे हम कोई भी टॉपिक ले सकते हैं. सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं कि आजकल जो मोबाइल फ़ोन है या जो सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया के
जरूरी नहीं है कि सब हम मतलब फेवर में ही होंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके खिलाफ हैं, जो इसके अगेंस्ट है। तो वो लोग एक साइड हो जाएंगे और वो अपना फेवर रखेंगे, और वो कुछ लोग जो इसके मतलब फेवर में है वो एक साइड हो जाएंगे, वो अपना फेवर रखेंगे। तो एक यहाँ पे दो टीम हो जाती है, एक वो जो फेवर में बोल रही है, एक वो जो उसके अगेंस्ट बोल रही है। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया कि इट इज रिटन इन आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल, तो इसको बहस के स्टाइल में लिखा जाता है। एंड फॉर डिबेट 2 persons आर रिक्वायर्ड, यस, तो डिबेट के लिए 2 पर्सन चाहिए होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 चाहिए होते हैं। एक तो टीम होती है जो इसके मोशन यानी कि जो इसके साथ होती है, और एक टीम होती है जो इसके खिलाफ होती है, जो भी टॉपिक है। और हमने जो टॉपिक डिस्कस किया कि भाई सोशल मीडिया के फेयर में कुछ लोग हैं तो वो उसके विद द मोशन हो जाएंगे, कुछ लोग जो सोशल मीडिया के खिलाफ है वो अगेंस्ट द मोशन हो जाएंगे, तो इस फेवर के खिलाफ हो जाएंगे। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इज टू चूज द साइड। तो पहली चीज है कि जब भी हम डिबेट राइटिंग कर रहे हैं तो हमें जो टॉपिक हमने चूज किया है उस टॉपिक का हमें पता होना चाहिए, उस टॉपिक का हमें नॉलेज होना चाहिए कि उस टॉपिक के क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं, उस सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम अपनी साइड रख पाएंगे कि ये सही है या ये गलत है। सो वेदर यू वांट टू राइट फॉर, आप इसके लिए लिख रहे हैं, और अगेंस्ट द मोशन या उसके आप खिलाफ लिख रहे हैं। ऑलवेज ट्राई टू सिलेक्ट द साइड यू पर्सनली वांट टू सपोर्ट। तो आपको वही साइड सेलेक्ट करनी चाहिए जिस साइड को आप पर्सनली सपोर्ट करना चाहते हैं या जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और आप सोचते हैं कि ये चीज़ें फेवर में है तो आप उसके फेवर में जाइए। और आपको लगता है कि ये चीज़ें गलत हैं, हमें इसके खिलाफ होना चाहिए, हमें इसका है ना मतलब हमें इसको मतलब उत्कारना चाहिए या नकारना चाहिए, तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं। तो इसमें जब हम डिबेट राइटिंग लिखते हैं तो डिबेट राइटिंग लिखते हुए हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3 पैसेज होते हैं, पैराग्राफ होते हैं। एक होता है इनिशियल पैराग्राफ जिसमें सैल्यूटेशन, इंट्रोडक्शन, रिटोरिकल क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है जब हम स्टार्ट करते हैं, और जो बात है हमारे मन में है उस बात को हम रखते हैं, ये हमारा इनिशियल जो सबसे पहला पैराग्राफ होता है उसमें आ जाती है। दूसरा पैराग्राफ होता है फिर वो जिसमें हम रीजंस देते हैं, अगर हम उसके फेवर में है तो उसके फेवर में बोलते हैं, अगर हम उसके खिलाफ हैं तो उसको हम खिलाफ बोलते हैं। और फिर तीसरा आता है पैराग्राफ जिसमें इनको 3 और 4 भी कर सकते हैं, सजेशंस देते हैं हम उस चीज़ को कि हम फेवर में बोले हैं तो हम उसके सजेशंस देंगे, अगर हम उसके खिलाफ बोले हैं तो वो सजेशंस हम देंगे। और फिर आता है हमारा कंक्लूजन्स, क्या है कि वो कंक्लूजन बताएंगे हम कि दिस इज द कंक्लूजन अबाउट दिस डिबेट विच वाज गोइंग ऑन टुडे। सो दीज आर मीन इनिशियल, मिडल और फाइनल। तो अब सैल्यूटेशंस की बात करें तो सैल्यूटेशंस के लिए और इंट्रोडक्शन के लिए हम लिख सकते हैं ऐसा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सैल्यूटेशन, एस्टीम्ड जजेस, हॉनरेबल गेस्ट, respected teachers and my fellow students, this is our introduction and salutation. So my name, so you can write your name, और नेम आप वो भी लिख सकते हैं जो स्टेटमेंट जो आप क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन में अगर किसी का नाम दिया है तो आप वो भी लिख सकते हैं। सो फील ऑनर्ड टू हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। अगर आप अगेंस्ट में बोल रहे हैं तो यहाँ पे अगेंस्ट लिखेंगे, अगर आप फॉर बोल रहे हैं तो यहाँ पे फॉर भी लिखेंगे। द टॉपिक, जो भी टॉपिक गिवन है उसके बारे में आप बोलेंगे, उसके बारे में आप लिखेंगे। फिर आती है इसमें मार्किंग स्कीम, जो कि ये है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेट है, कंटेंट है, एक्सप्रेशंस है, ये जो है ये मार्किंग स्कीम रहेगी। जो फॉर्मेट में सैल्यूटेशन आता है, इंट्रोडक्शन आता है, रिटोरिकल क्वेश्चंस आते हैं, अपने सजेशंस आते हैं, वो सभी बातें हम यहाँ पे फॉर्मेट में रख रहे हैं। और उस फॉर्मेट जो है वो है हमारा 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स के लिए हमारा फॉर्मेट आ जाता है। फिर कंटेंट, जो भी कंटेंट है उस कंटेंट के बारे में हमने सारा एक्सप्रेस करके लिखा है, हमने एक्सप्लेनेशंस दी है, उस एक्सप्लेनेशंस जितना भी कुछ हमने लिखा वो सारा आ जाता है 4 मार्क्स में। और फिर आती है जो हमने लिखा है उसमें एक्सप्रेशन हमने किस ढंग से दिया। तो ग्रामर के लिए जो है वो 2.5 मार्क्स हमें मिल जाते हैं, ग्रामर के लिए हमें मिलते हैं 2.5 मार्क्स।
जो कि ग्रामर के लिए है, कि आपने जो लिखा है उसमें आपने ग्रामर कैसी, वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, वो सारी बातें हम वहाँ पे देख लेते हैं और उसको देखने के बाद उसके मार्क्स हमें मिलते हैं 2.5 मार्क्स। देखिए ये जो 4 लिखा हुआ है, ये 4 मार्क्स उसी में आगे हैं जो हमने कंटेंट लिखा है, बट उसके बाद उस कंटेंट में, लिखे हुए कंटेंट में अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उसके मार्क्स आपके 2.5 में से कटेंगे। और जो आइडियाज आपने लिख दिए हैं, जो स्टाइल आपने लिखने के लिए यूज किया है, उसके लिए भी 2.5 मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये टोटल जो होते हैं 2.5, 2.55 एंड 4, 9 एंड 1 10। तो टोटल मार्क्स जो आते हैं डिबेट राइटिंग के वो आते हैं 10। तो 10 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन होता है। तो कुछ और जो वीडियोस तो नहीं होंगी, बट इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स मैं आज आपके पास भेज रहा हूं और उन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग या इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप उन एग्जांपल्स को देख लें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंडरफुल डे, थैंक यू।